وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أحد من قائل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال أحد من قائل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آج کی اس عظیم شان بزم میں جو ناندیڑ کی سرزمین پر اس عظیم شان ہال میں فضیلت شیخ عبد الخالق صاحب عالیابی اپنی اللہ کی سرپرستی میں ان کی نگرانی میں مسجد ساجدین کے افتتاح اور اسی طرح سے مدرسہ دارالتوحید کے بچوں کے سالانہ اجلاس اور ان کی ایرانی پروگرام کی مناسبت پر منعقد ہوئی ہے. اس بزم میں جو موضوع میرے ذمے آیا ہے اور مجھے تھوڑی دیر تک آپ کو گفتگو کرنی ہے وہ موضوع بہت ہی اہم ہے, بہت ہی حساس ہے اور وقت اور حالات کی بہت ہی زیادہ اہم ضرورت بھی ہے. آپ نے ناظرین محترم سے عنوان سنا ہے اسلاموفوبیا اسباب اور علاج. اسلاموفوبیا کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, پہلے اسے سمجھ لینا ضروری ہے. اب اس کے کہ میں اس کے اسباب اور اس کا علاج بتلاؤں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ کون سی مشکل ہے, اس کے اسباب کیا ہیں اور وہ کون سی مشکل ہے جس کا علاج اور حل ہمیں جاننا چاہیے. تو کم از کم حقیقت کو معلوم پڑے کہ وہ چیز کیا ہے. اسلاموفوبیا میں دو الفاظ ہیں, ایک ہے اسلام اور دوسرا ہے فوبیا. اسلام تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ دین, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ضمانت دی ہے. یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی طرف روز اول سے اتارا ہے, سارے انبیاء علیہ السلام کا جو دین. بہرحال اسلام ہم جانتے ہیں. فوبیا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فوبیا اصل میں یونانی لفظ ہے اور یہ فوبک سے بنا ہوا ہے. فوبک کے معنی یونانی زبان میں فوبک کے معنی خوف کے, ڈر کے ہوتے ہیں. اور اسلاموفوبیا جو کہا گیا, جو او لگایا گیا, یہ خلافت کے لیے ہے. معنی کیا ہے اسلاموفوبیا؟ یعنی اسلام کا خوف, اسلام کا ڈر. فوبیا کے معنی ڈر کے ہوتے ہیں, خوف کے, دہشت کے اور اسی طرح سے ہراس کے. اسلاموفوبیا کا مطلب یہ ہے اسلام کا خوف, اسلام کا ڈر, اسلام کی وحشت, اسلام کی خطرناکی, اس سے چوکنا رہنا, اس سے گھبرانا, اس کے احکام, اس کی تعلیمات, اس کی عبادات اور اس کا جو بھی زندگی کا نظام اور سسٹم ہے, اس کی جو بھی تعلیمات ہیں, ان تمام چیزوں سے ڈرنا, اسلام کا خوف, اسلام کا ڈر. اب یہ عنوان ہے اور اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی بات جو کرنی ہے وہ دو نقطوں پر مشتمل ہے. ایک ہے اسلاموفوبیا کے اسباب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کا خوف, اسلام کا ڈر, اس کا مطلب کیا ہے حقیقت. ایسے تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے, یہ دین کوئی خوف کا دین نہیں ہے بلکہ تو خوف ختم کرنے کے لیے آیا ہے, دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, دنیا میں آشتی اور سلامتی کا سبب بڑھانے کے لیے آیا ہے. یہ اسلام جب سے آیا تب سے دنیا کے اندر شانتی پیدا ہو گئی, امن آ گیا. یاد کرو ماضی کو, یاد کرو اسلام سے پہلے دور جاہلیت کو, جب لوگوں کی مال خطرے میں تھے, لوگوں کی جانوں کا خطرہ تھا, لوگوں کی عزت و آبرو کا خطرہ تھا. اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا. یہ اسلام جب آیا تو خوف امن میں شانتی میں تبدیل ہو گیا. نہ لوگوں کی جانوں کا خوف باقی رہا, نہ لوگوں کی مال کا خوف رہا, نہ لوگوں کی عزت و آبرو کا کوئی خوف رہا. یہ اسلام امن کا دین ہے, رحمت کا دین ہے, سلامتی اور آشتی کا دین ہے. اس اسلام کی آمد سے
दुनिया में उल्फत मोहब्बत पैदा हुई, इसके जरिए से जुदा दिलों को जोड़ा गया, इसके नतीजे में पस की जंगों का खात्मा हुआ, इसके नतीजे में न जाने कैसे हालात थे अरब के। इस्लाम में अल्लाह तआला की फज़ल से अपने आते ही और दिलों के अंदर जगा कर मोहब्बत उल्फत पैदा कर दी, और वो खज़रज की लड़ाइयाँ ज़माने दराज से हो रही थी। मेरे भाइयों और मेरी काबिल इहतराम माओ बहनों, असल में मौजू बहुत वसी है और बहुत सारे पहलू भी हैं, बहुत सारे दलाइल हैं, बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत ही महदूद है, इसलिए बहुत ही सफाई पर मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूँगा। ये बात तो हम जानते हैं कि अल्लाह तआला का दीन ये कोई डरने का दीन नहीं है, ये कोई खौफ खाने का दीन नहीं है, बल्कि ये तो बेखौफ होने का, अमन आफियत शांति का दीन है। अल्लाह तआला ने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का जिक्र फरमाया, वल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी जहान के लिए, सारी दुनिया वालों के लिए रहमत ही बना करके भेजा है। आपकी आमद रहमत है, दुनिया में आपके कदम रहमत के कदम है। आपकी एक एक बोल, आपका एक एक आपकी ज़बान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ रहमत का पैगाम देता है, आशिकी व मोहब्बत का पैगाम देता है। आपकी किसी अदा से, आपके किसी भी लफ्ज़ से, दुनिया में किसी भी एतबार से किसी भी तरह का खौफ, किसी भी तरह का डर नहीं है, बल्कि हर लिए मोहब्बत है, अमन है, आफियत है, आपस में दिलों को जोड़ने का पैगाम है। ये है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों और काबिल इहतराम माओ बहनों, अल्लाह तआला ने कुरान करीम के अंदर एक हकीकत और भी बयान फरमाई है। उस हकीकत का तज़किरा मैं आपके सामने करूं ताकि गुफ्तगू को आपके सामने जोड़ने में आसानी हो। अल्लाह तआला ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है, युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये लोग जो इस्लाम दुश्मन है या इस्लाम मुखालिफ है, जो इस्लाम को अपना दुश्मन समझते हैं, इस्लाम से डरते हैं, इस्लाम से घबराते हैं, इस्लाम के खिलाफ उनका नजरिया है, ये लोग युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाह, ये अल्लाह तआला के नूर को, अल्लाह की रोशनी को, इस्लाम को, अल्लाह की रोशनी कुरान करीम को, अल्लाह की रोशनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बुझा देना चाहते हैं, अपनी ज़बान से खुल कर देना चाहते हैं, अपने मुंह से बुझा देना चाहते हैं। अल्लाह तआला फरमाता है, लेकिन याद रखो अल्लाह ताला अपने इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा, इस्लाम अपने तमाम को पहुंच करके रहेगा, इस्लाम अपनी अंजाम को पहुंच करके रहेगा। पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में गोशे गोशे में इस्लाम की रोशनी बिखर करके रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम को मिटा नहीं सकती, इस्लाम को खत्म नहीं कर सकती। ये पैगाम भी अल्लाह तआला ने दिया है। इसी तरह से नुक्ता कम है, अल्लाह तआला फरमाता है, वक़द युमिन अहलुल किताब लौ यकुतूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारन हसदन मिन अनफुसिकुम मिन अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुल हक़। अल्लाह तआला फरमाता है, बहुत सारे यहूद, बहुत सारे नसारा अहले किताब, इनकी चाहत है, इनकी दिली तमन्ना है कि वो तुम्हें अपने दीन इस्लाम से मुर्तद कर दे, तुम्हें दोबारा कुफ्र में दाखिल कर दे, तुम्हें कुफ्फार बना दे, तुम्हें ईमान से इस्लाम से बर्खास्त करके फिर से तुम्हें कुफ्र की राह पर डाल दे। अल्लाह फरमाता है, हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, इनके दिल का हसद है, इनके अंदर का जलन है, इसकी बुनियाद पर ये नहीं चाहते कि तुम इस्लाम पर रहो, ये चाहते हैं, इनकी तमन्ना है कि तुम काफिर हो जाओ, मुशरिक हो जाओ, इस्लाम से तौहीद से बर्खास्त हो जाओ। ये अल्लाह तआला फरमाता है, इनकी नीयत ये है, इनकी चाहत ये है, इनकी तमन्ना ये है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे काबिल इहतराम माओ बहनों, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इस्लाम के सिलसिले में लोगों की ये नजरियात, ये कुफार, ये मुशरिकीन, ये यहूद नसारा और ये इस्लाम में सारे नजरियात रखने वाले, इनकी चाहत है कि इस्लाम खत्म हो जाए, इस्लाम के नाम लेवा खत्म हो जाए। इस्लाम घरावना मजहब है, मुसलमान घरावने लोग हैं, कौन नाम लोग हैं, ये प्रोपेगेंडा दुनिया में आप से नहीं चल रहा है। इसका आवाज अगर आप देखना चाहें, मैं बिल्कुल सच्ची बात करना चाहता हूँ, इसका आवाज अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको इशारा करना चाहता हूँ। इसका आवाज कब हुआ? इसका आवाज उसी वक्त हुआ जब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए। आप कुरान करीम लेकर के आए, आप सुन्नत लेकर के आए, आप अल्लाह का पैगाम लेकर के आए। उसी वक्त से इस्लाम के खिलाफ इस किस्म के प्रोपेगेंडे, इस्लाम के खिलाफ
अंदाज की साजिशें हमेशा होती रही है। इस सिलसिले में और तफसील में जाने के बजाय एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ, फिर असल मौजू पर यानी मौजू के अगले हिस्से पर आना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरे भाइयों, मेरी काबिल इज़्ज़त और बहनों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जानती हैं कि बगैर यरमूक हुआ था, यरमूक की लड़ाई हुई थी। अच्छी तरह से तारीख को ध्यान में लाए, यरमूक की जंग में क्या हुआ था, हिरकल था। और याद रखें, यरमूक की जंग ये अहले किताब से हुई थी, यहूदियों से हुई थी। मामला क्या था, जब मुसलमानों ने यरमूक को फतह कर लिया, उस वक्त हिरकल का जुमला याद करें, बहुत के साथ बात करना चाहता हूँ। क्या कहा था हिरकल ने? हिरकल ने मुखातब करके कहा था, मुखातब करके कहा था, आली की जा सूरियत सलाम, ऐ सलाम के सूरिया। आप जानते हैं दिमश्क को मदीनतुस सलाम कहा जाता है, दिमश्क जिसको शाम कहा जाता है, सूरिया कहा जाता है। आज ये जो दिमश्क है इसको मदीनतुस सलाम कहते हैं, इसका जो नाम है मदीनतुस सलाम है। हिरकल ने मुखातब करके कहा था शहर को, जब मुसलमानों ने फतह कर लिया था उस वक्त मुखातब करके कहा था, याद रखना ऐ शहर सूरिया, अब तू हमारे हाथों से निकल चुका है, मुसलमानों के हाथ में जा चुका है। मुसलमान जो हमारे दुश्मन हैं वो तुझ पर गालिब हो चुके हैं, और आज की तारीख से कोई रूमी तेरे अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अगर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो खौफ के साथ दाखिल होगा, डर के दाखिल होगा, दहशत के साथ दाखिल होगा, अपनी जान माल का खतरा महसूस करते हुए दाखिल होगा। ये पैगाम समझ में आता है। क्या था मसला? इस्लाम सूरिया की शुरुआत याद करें, उसकी मिसाल है इस्लाम सूरिया, इसकी मिसाल है ये अपनी जबान से हिरकल जैसे मेरे भाइयों हाकिम ने वक्त के बाद शाम के बाद कह दिया, आज की तारीख से अगर हम दाखिल होंगे सूरिया में तो हम खौफ के साथ दाखिल होंगे, डर के साथ दाखिल होंगे, तबक करके दाखिल होंगे, बिल्कुल घबराहट के साथ। तो ये मसला है। अब पता क्या चला कि इन्हें डर है इस्लाम से, इन्हें डर है मुसलमानों से, इन्हें डर है कुरान से, इन्हें ये माहौल बनाया गया। मैं बताना चाहता हूँ, इस्लाम में डरने की बात नहीं है। इस्लाम तो सारे जहानों के रहमत बन करके आया है। क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या मुशरिकी, क्या मजूसी, क्या मुल्हिदी, क्या दुनिया का किसी भी इस्म और धर्म से ताल्लुक रखने वाला, सबके साथ इस्लाम ने रहमत का सलूक किया है। इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी अल्लाह तआला की दी रहमत का मामला है। कोई सख्ती नहीं, कोई शिद्दत नहीं, कोई जाहिलियत नहीं, लेकिन ये मामला बना दिया गया इस्लाम को बदनाम करने के लिए। मैं अभी इस बात में जिक्र करना चाहता हूँ, ये रहमत का दीन है, ये उल्फत का दीन है, ये मोहब्बत का दीन है। इसे क्यों फोबिया वाला दीन करार दिया गया? क्यों इससे डराया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम नहीं चाहिए, इस्लाम खतरनाक है। नहीं नहीं, मुसलमान नहीं चाहिए, मुसलमान खतरनाक है, मस्जिदें खतरनाक है, मदरसे खतरनाक है, नमाजों का डर है, अजान से डर है, मुसलमानों के मामला से डर है, मुसलमानों के महल्ले में रहने से डर है, मुसलमानों को अपनी सोसाइटी में रहने से डर है। उसको किराए पर घर नहीं देना खतरनाक है, उसे घर नहीं बेचना खतरनाक है, उसे दुकान नहीं बेचना खतरनाक है, उसके साथ कारोबार नहीं करना खतरनाक है। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा? जबकि इस्लाम ने वो रहमत का पैगाम दिया है, दुनिया में किसी धर्म में किसी हिस्से में नहीं दिया है। मैं छोटी सी समझ करके बात आगे बताता हूँ। एक तरफ हिरकल की बात आपने सुनी है, दूसरी तरफ इंसानियत, रहमत और उल्फत, मोहब्बत, शफ़क़त की मिसाल भी समझो। इंसानियत की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर भी इस्लाम के अंदर रहमत का पैगाम है। किसी भी धर्म की का मानने वाला हो, रब्बुल जलाल का बागी हो, या रब्बुल जलाल की तौहीद का अमलदार हो, अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा बंदा हो, या अल्लाह तबारक व तआला की दीन का और उसकी तौहीद का बागी क्यों ना हो, सबके साथ रहमत का पैगाम है। मेरे भाइयों, आपको बताऊं मैं, कादसिया के मकाम पर, कादसिया वो भी आप जानते हैं इस्लाम के खिलाफ लोगों की बस्तियां थी। वहां पर दो सहाबे किराम मौजूद थे, सहाबे किराम मौजूद थे। सामने से जनाजा गुजरा, वो जनाजा यहूदी का जनाजा था।
क्योंकि कादसिया की बस्ती यहूदियों की बस्ती थी, किसी की मौत हो गई, वो यहूदी था। जब उसका जनाजा सामने से गुजरा मुसलमानों के, तो ये दोनों सहाबे किराम उठे खड़े हो गए। जनाजा गुजरा यहूदी का, दोनों सहाबी उठे खड़े हो गए। दूसरे लोग जो वहां पे मौजूद थे उन्होंने कहा, भाई आप लोग क्यों खड़े हो गए, आप लोग क्यों खड़े हो गए, ये तो मुसलमान का जनाजा नहीं है, ये तो इसी बस्ती का आदमी है, यानी यहूदी का जनाजा है। तुम यहूदी के जनाजे के गुजरने से क्यों खड़े होते हो, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। और दोनों सहाबा ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे रिसालत की मिसाल पेश की। कहा, वक्त हमें याद है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम मौजूद थे, आपके सामने से भी एक यहूदी का जनाजा गुजरा था, आप भी उठ करके खड़े हो गए थे। जब यहूदी का जनाजा गुजरा था तो आप उठ के खड़े हो गए थे। हमने भी अल्लाह के नबी से कहा था, या रसूल अल्लाह इन्नहा जनाज़तुल यहूदी, अल्लाह के नबी ये तो यहूदी का जनाजा है, आप क्यों खड़े हो रहे हैं यहूदी के जनाजे के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो जवाब दिया था, जो जुमला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो इबरत है सारी दुनिया के लोगों के लिए, मशरिक के लोग हो, मगरिब के लोग हो, शिमाल के जुनूब के, शुरू से लेकर के आज तक और रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने क्या कहा था, अलैसा नफ्सन, मेरे साथियों तुम कहते हो जनाजा यहूदी का है, आपको खड़े होने की क्या जरूरत है। ठीक है, जनाजा यहूदी का है, ठीक है, लेकिन क्या जान नहीं है, जान तो है ना, जान नफ्स है, ये इंसान है कि नहीं है। यहूदी का जनाजा है तो क्या हुआ, ईसाई का जनाजा हो तो क्या हुआ, मुसलमान का जनाजा हो तो क्या हुआ, किसी मुस्लिम का जनाजा हो तो क्या हुआ, है तो कोई इंसान, इंसान का जनाजा जा रहा है, मुझे उठ जाना चाहिए, क्योंकि मौत पहला मौत है और मौत यकीनन एक मुसीबत है, किसी के लिए भी मुसीबत हो। ये पैगाम है, एक तरफ ये पैगाम, दूसरी तरफ ये खूबियां, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खूबियां का माहौल, कराने का माहौल, हैबत का माहौल क्यों है ये, मैं पैगाम आपके सामने पहुंचाना चाहता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। मैं 2-3-4 बातें जिक्र करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपके सामने ये बातें मैं अर्ज करना चाहूंगा। और इस दुआ के साथ अल्लाह तबारक व तआला से और इस दरख्वास्त के साथ, इस इल्तिजा के साथ भाइयों से भी बहनों से भी कि इस नुक्ते को समझो, इस्लाम से डराने का माहौल क्यों बनाया जा रहा, इसके पीछे असबाब क्या है। कई एक असबाब है। एक सबब सबसे पहले नंबर पर तो ये है, सबसे पहला सबब तो ये है कि ये रोज़े अव्वल से शुरू से ही तारीख इस्लाम के साथ साथ जब से इस्लाम आया है तब से ये नजरिया चलता है। क्यों? इस्लाम अल्लाह की वहदानियत का दीन है, अल्लाह की तौहीद का दीन है, किसी बंदे के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता, किसी गैर अल्लाह के सामने इबादत का कोई काम अंजाम नहीं दिया जा सकता। ये पैगाम इस्लाम का है, ये पैगाम तौहीद का, इस्लाम का पैगाम है। इससे रोज़े अज़ल से, आगाज से लोगों को नफरत है। इसलिए मक्का ने कहा था, ये क्या बात हो गई, हमारे बाप दादा लात मनात उस्ता की हुबल की पूजा किया करते थे, ये क्या नया तरीका निकाल दिया आपने, क्या नया तरीका निकाल दिया। एक अल्लाह की इबादत होगी, हमारे बाप दादा न जाने कितनों की इबादत किया करते थे, ये तो हमें तस्लीम नहीं है। तो शुरू से ही याद रखो, एक फिक्री मसला है, एक जनरल मसला है, एक कॉमन मसला है। इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम कुफ्र, शिर्क, बिदअत, कुफ्र, शिर्क, यहूदियत, ईसाईयत, इल्हाद, तहरीयत, ये हमेशा से मुखालिफ है। इसलिए एक बात अपनी जगह पर तय है कि मुखालफत तो रहेगी, लेकिन मसला दूसरा क्या है। दूसरा मसला ये है मेरे भाइयों कि इस्लाम जब दुनिया में आया तब तो अजनबी था, अकेला था, कोई इसका चाहने वाला नहीं, कोई इसे अपनाने वाला नहीं, अकेले एक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इस्लाम के नंबरदार थे। लेकिन देखते ही देखते इस सारा दौरे नबूवत के अंदर दुनिया के चक्के चक्के में इस्लाम फैल गया
दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम फैल गया। आगे बढ़े खिलाफत राशिदा में बहुत दूर तक फुतूहात का सिलसिला चल गया। और आगे बढ़ो मेरे भाइयों, गुजरते गुजरते ये सारे इलाके अंदुल फतेह कर लिया गया, अफ्रीका फतेह कर लिया गया, मिस्र फतेह कर लिया गया। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों और बहनों, बहुत दूर तक इस्लामी फुतूहात का सिलसिला चला गया। जब इस्लामी फुतूहात का सिलसिला आगे बढ़ा, इस्लाम के मुखालिफीन के दिलों में बहुत डर पैदा होने लगा। अरे इस्लाम को धीरे धीरे सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले रहा है, अपनी लपेट में ले रहा है। इसलिए अब ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। ये प्रोपेगेंडा मुसलमानों से डराओ, इस्लाम से डराओ, इस्लाम से नफरत पैदा करने का माहौल पैदा करो, ये सिलसिला शुरू किया गया। इस हवाले से मैं आपके सामने जो नमूना पेश करना चाहता हूँ, जो हज़रत जुबैर बिन अम्र तौसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इशारा करूँगा बस, बिल्कुल इंतजार के साथ बात करना चाहता हूँ। जुबैर बिन अम्र यमन के बाशिंदे हैं, अब ये दौस के रहने वाले हैं। उनको पता चला कि मक्का में कोई नबी आया है, उन्होंने सफर करके यमन से मक्का का सफर किया, यहाँ आए। जैसे ही मक्का पहुंचे, अभी मक्का के अंदर दाखिल नहीं हुए थे, मुशरिकीन की एक टीम आ गई, मुसलमान मुशरिकीन की एक टीम आ गई और आकर के उनसे मुलाकात किया और मुलाकात करके उन्हें डराया। आप कहाँ जा रहे हैं? मक्का के उस नबी से मुलाकात करने जाना चाहता हूँ, मैंने सुना है कोई नबी आया है। मुशरिकीन ने कहा नहीं, गलत नबी का शिकार मत होना, वो जादूगर है, उसके पास जाओगे तो जादू कर देगा, वो शायर है, उसकी बात ऐसी है कि तुम सुन लोगे तो फिर मुतासिर हुए बिना नहीं रहोगे। वो मजनून है, पागल है, उसकी बात सुनकर बेटा फायदा है। और जादूगरी की बात, उसकी शायराना कलाम की बात ऐसी है कि जो सुनता है उसका दीवाना हो जाता है, उसका गिरीजा हो जाता है। इसलिए उसके पास न जाना, खबरदार नहीं जाना। जुबैर बिन अम्र ने कहा कि ठीक है, अब तो मैं किसी सूरत में मोहम्मद से मुलाकात नहीं करूंगा। बच बच करके अंदर गए, बल्कि उनको खतरा हुआ कि कहीं कोई बात मेरे कान में उनकी न पड़ जाए, तो उन्होंने रुई भी और अपने कान के अंदर रुई भी दाखिल कर ली कि ऐसा न हो कि कोई बात मोहम्मद के मेरे कान में पड़ जाए और मैं फिर बहक जाऊं, गुमराह हो जाऊं। मेरे भाइयों, यही तरीका था। बहरहाल वो चलते चलते गए, जब मक्का पहुंचे, मदीने हराम पहुंचे, देखा कि मोहम्मद नाम के आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहने काबा में नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने कान के अंदर रुई डाल रखी थी, वहां खड़े हो गए, बातें सुनने लगे। कुरान की आयत तिलावत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत करीमा की थोड़ी सी आवाज ना चाहते हुए भी उनके कानों के अंदर पड़ गई। कानों में आयत करीमा की आवाज पड़ गई। कहते हैं ना चाहते हुए भी मैंने कुछ बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से सुन ली। अब मैंने बात सुनी तो मैं हैरान हो गया, ये कैसी बात है? ये तो बहुत अजीब व गरीब कलाम है, ये तो इंसान का कलाम लगता ही नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम लगता है, ये तो खाली वो मालिक का कलाम लगता है। ये सोच करके अब उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाऊंगा। उन्होंने ये फैसला किया कि अल्लाह के नबी के घर जाएं। अल्लाह के नबी के घर तशरीफ ले गए और उनसे जाकर के कहा, मैंने मक्का में कदम रखा, अंदर आने से पहले मुशरिकीन ने यहाँ के लोगों ने मुझे आपसे डराया, आपका पैगाम, आपकी बातें न सुनना, आप जादूगर हैं, आप पागल हैं, आप शायर हैं, आप दीवाने हैं, आपसे डराया गया मुझे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैंने कुछ सुना है, लेकिन मैं अभी रूजा निकाल करके मैं आपकी जबान से बात सुनना चाहता हूँ। भला बताइए कि आप कौन हैं, क्या पैगाम लेकर के आए हैं, जरा सुना दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की चंद आयतों की तिलावत फरमाई, चंद आयतों की तिलावत फरमाई। उन आयतों को सुना और सुन करके हैरान हो गए। कहा, अल्लाह की कसम है, ये बातें किसी इंसान की नहीं हो सकती, ये तो रब्बुल जलाल का कलाम लगता है, ये अल्लाह का फरमान लगता है। मैं गवाही देना चाहता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं है। और फिर कभी शहादत पढ़कर इस्लाम ले आए, ईमान कबूल कर लिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर
रसूल अल्लाह। कलमे पढ़ कर इस्लाम में दाखिल हो गए। उसके बाद कहा अल्लाह के नबी जल्दी से मुझे ये बताइए, मैं अपनी कौम में जाना चाहता हूँ, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ, मेरी हैसियत बड़ी ऊंची है, मेरी मान्यता है, लोग मेरी बातों को मानते हैं, इसलिए मैं जाऊंगा, अब आप ये पैगाम के सामने पेश करूंगा, मुझे कुछ निशानी दे दीजिए, मैं निशानी लेकर के जाऊँ। इसके बाद बहरहाल बात लंबी है। जब वो अपने कबीले में गए, अपने कबीले गाँव में गए, बाप से मुलाकात हुई, बाप ने सलाम किया, बाप ने बातचीत की, कहा मैं आपसे रास्ता नहीं रखता। बेटे क्या हो गया? कहा अब्बा मसला ये है कि मैंने कुफ्र और शिर्क से तौबा कर लिया है, मैंने मोहम्मद के हाथों पर बैत कर लिया है। बाप ने कहा बेटे जो तुम्हारा दीन है वही मेरा दीन है, बताओ क्या है इस्लाम। यही बात बीवी ने कहा, यही बात और लोगों ने कहा। इस तरह से धीरे धीरे लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। बताना यह है कि ये मसला क्यों था, इसलिए कि धीरे धीरे इस्लाम के मानने वालों की तादाद बढ़ रही थी। खतरा था इस्लाम फैल न जाए, इस्लाम पूरी दुनिया में जत्थे में आम न हो जाए। इस डर की वजह से ये काम किया गया था कि मुसलमानों को इस्लाम से, कुरान से, नबी से, सुन्नत से डराओ, लोगों को खौफ दिलाओ। देखना मुसलमान ऐसे होते, देखना इस्लाम ऐसा होता, देखना इस्लाम के मानने वाले ऐसे होते हैं, बड़े खूंखार होते हैं, बड़े गरीबे होते हैं, ये तो जान ले लेते हैं, ये तो मारधाड़ कर लेते हैं, ये तो आबू छीन लेते हैं, वगैरह वगैरह। ये माहौल बनाया गया। ये दूसरा सबब था जिसकी वजह से इस इस्लाम को बदनाम करने का काम किया गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि दुनिया के सामने ये पैगाम आम किया जाए, इस्लाम डरने का मजहब नहीं है, इस्लाम आतंक का दीन नहीं है, इस्लाम तो अमन व आशिकी का दीन है। आओ जरा दामन से करीब आओ तो पता चलेगा, करीबा से तो मालूम पड़ेगा। बदनामियां बहुत हैं, प्रोपेगेंडे बहुत हैं, साजिशें बहुत हैं, लोगों की प्रोपेगेंडे में नहीं आना, बल्कि करीब आकर के देखो, करीब आकर के देखो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, मुसलमान कौन होते हैं। ये डरने डराने वाले लोग नहीं हैं, ये तो उल्फत और मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, किसी शायर की वो बात मुझे याद आती है। किसी शायर ने कहा था, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मौन हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। अगर छू करके देखता तो जान लेता कि मैं खौफ खाने की चीज नहीं हूँ, डरने की चीज नहीं हूँ, मैं सख्त नहीं हूँ, मैं जाहिलियत वाला नहीं हूँ, मैं आतंकी नहीं हूँ, बल्कि मैं उल्फत और मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूँ। तो ये है करीबान पैगाम है और ये हल है मसले का। तीसरी बात, इस्लामोफोबिया क्यों फैला, इस्लामोफोबिया क्यों चल रहा, इस्लाम से क्यों डराया जा रहा है, इसके पीछे इस्लाम के बहुत गौर से सुनना, ये बातें बहुत गौर से सुनना जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। बकिया जो बातें हैं वो तो आप पहले से भी जानते हैं और गौर भी करते रहते हैं, लेकिन मैं अब तीसरी बात जो बोलने जा रहा हूँ ना मेरे भाइयों और बहनों, मैं वो बोलने जा रहा हूँ कि तीसरी जो मुझे इस्लाम से खौफ की बात, डराने चौकन्ना करने की, वो इस्लाम से निस्बत रखने वाली कुछ ऐसी जमातें, कुछ ऐसी टोलियां, कुछ ऐसे फिरके, कुछ ऐसे धड़े तो इस्लाम का नाम लेने वाले हैं और जिहाद का नाम लेते हैं, जिहाद का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के अपनी सरगर्मी चलाते हैं। इनकी सरगर्मियों की वजह से इस्लाम का नाम हुआ है, इनकी हरकतों की वजह से मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों और मेरी इस्लाम और बहनों, इनकी हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम हुआ और इस्लाम के खिलाफ गैर मुस्लिम भाइयों ने इस्लाम से डराना शुरू कर दिया। ये देखो मुसलमानों का क्या हाल है। और मैं इशारा कर दूं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, कुरान का नाम लेकर के, इस्लाम का नाम लेकर के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह करने वाले लोग और जिन्हों पर तालियां सजी हुई, लेकिन अफसोस इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने का काम किया। ये कौन है? ये खारजी तहरीक रखने वाले लोग, खारजी तहरीक रखने वाले लोग जिनके यहाँ इल्म नहीं है, बसीरत नहीं है। अब ये तंजीमें कौन सी है? आप लश्कर तैयबा को ले लें, आप अल-कायदा को ले लें, आप अभी माजी करीब में बिल्कुल IS दाइश को ले लें, या
ان کے ہم پیالہ ہم نوالا جو لوگ ہیں ان جماعتوں کو بھی لے لیں، ان شخصیات کو بھی لے لیں جنہوں نے اس کو بڑھاوا دینے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو جہاد کے نام پر آتنک، جہاد کے نام پر دہشت گردی، جہاد کے نام پر ناحق جان لینا، جہاد کے نام پر ناحق خون بہانا، جہاد کے نام پر مار ہڑپ کرنا، جہاد کے نام پر آدمی سے کھلواڑ کرنا، ان لوگوں کی ذاتیوں کی وجہ سے اسلام فوبیا بڑھا۔ اور اسی موقع پر وہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، تو بات یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا اسلام فوبیا کا معاملہ نیا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آمد سے شروع ہوا ہے اور اسی وقت سے چل رہا ہے۔ چلتے چلتے زیادہ تر معاملہ کہاں تھا؟ یہ پوری دنیا میں نہیں تھا اسلام فوبیا، زیادہ تر معاملہ ان ملکوں میں تھا جو یورپ کے ملک کہلاتے ہیں۔ یورپ کے ممالک ان ملکوں میں اسلام فوبیا بہت چلتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پوری دنیا میں اسلام فوبیا کا فتنہ آ گیا اور یہ پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ ہر ایک پروپیگنڈا کرتا ہے اسلام خطرناک ہے، مسلمان خطرناک ہے، لیکن افسوس مسلمانوں سمجھو جب 9/11 کا حادثہ ہوا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا سن 2001 میں غالباً، اس وقت سے اسلام و فوبیا بہت زیادہ دنیا میں عام ہو گیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آج سے 20-22 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ وہاں سے یہ فوبیا بہت چلنے لگا، اسلام سے ڈرانا، مسلمان کے بڑے آتنکی ہوتے ہیں، یہ جان مال کو ضائع کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تیسرا سبب کیا ہے میرے بھائی؟ تیسرا سبب ہے یہ فتنہ، جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر، دعوت کے نام پر، تعلیم کے نام پر اور اسلام کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے نام پر یہ دہشت گردانہ تنظیمیں، ان تنظیموں نے اسلام کو بدنام کیا۔ اس کی وجہ سے اسلام و فوبیا کا فتنہ اور تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا۔ تیسری بات، چوتھی بات کیا ہے؟ اور بالکل کے ساتھ تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف میں گنا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ چوتھی چیز ہے ہم لوگوں کی ہم اپنوں میں سے بعض کی جہالت، جذباتیت، ایموشن، عاطفت، دین سے بیزاری، دین سے ناواقفیت، اس نتیجے میں نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اسلام فوبیا کا میرے بھائی چرن ہوتا ہے، زیادہ پھیلتا ہے اسلام فوبیا۔ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے حادثات ہو جاتے ہیں، کبھی جان کے حادثات، کبھی مال کے حادثات۔ میرے بھائیوں، اسلام اور کفر کا ٹکراؤ، جھگڑا اور آپس کی رساکشی یہ تو بہت پہلے سے چل رہی ہے، تو ٹکراؤ تو چلے گا ہی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نعرہ لگاتا ہے جس نے ایسا کیا تو سر تن سے ٹوٹا، ایسا اگر کسی نے کیا تو سر تن سے جدا کر دیں گے، اور کوئی سر تن سے جدا کرنے کا کام کر دیتا۔ اس سے اسلام و فوبیا بڑھتا ہے، اس سے اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے دین اسلام کی، یہ دین اسلام کا کوئی پیغام نہیں ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یاد رکھو ایسی حرکتیں کرنا، یا مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں پیشتر ایک شخص مرتد ہو گیا۔ مرتد پہلے سے بھی بدعقیدہ ہی تھا، وہ بدعقیدہ ہی تھا، لیکن سر عام دنیا کے سامنے اعلان کر کے کفر میں داخل ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس نے اعلان کیا قرآن کریم کے اندر 26 آیتیں وائرل پھیلاتی ہیں، دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے، جان و مال کو ضائع کرنے کی تعلیم دیتی ہے، جہاد کی آیتیں ہیں 26، اس کو نکال دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کہنے والوں نے کہا اعتراض کرنے والے ہر دور میں رہے، قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، کوئی پہلا آدمی نہیں تھا یہ، لیکن لوگوں نے کہا تھا اس کو مار ڈالا جائے، اس کا جنازہ نکال دیا جائے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائے۔ اس طرح کا ماحول بنانے سے اسلام کی چھوی بگڑتی ہے، مسلمانوں اسلام کی چھوی خراب ہوتی ہے، اس لیے اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ تو کچھ لوگوں کی عقلوں کی جہالت کے نتیجے میں، ان کے ایموشن کے نتیجے میں یہ کام ہوتا ہے۔ تیسری چوتھی پانچویں بات یہ ہے کہ اسلام کے مخالفین جتنے ہیں، یہود، نصارہ، ایسے مشرکین، ملحدین، بہیمیہ، آپ کی پوجا کرنے والے، یہ سارے کے سارے اسلام سے ناواقف ہیں، اسلام سے نابلد ہیں،
कि इस्लाम नहीं जानते, इस्लाम की तालीमात नहीं जानते, इस्लाम का पैगाम नहीं जानते, इसलिए भी बहुत ज़्यादा खूबियाँ फैलता है। हमारा काम ये है कि हम इसको इस्लाम की सही तालीमात को रोशनास कराएं, इस्लाम का तारुफ कराएं, इस्लाम के महासिन गिनवाएं, इस्लाम की खूबियाँ इनके सामने रखें, तब जाकर इस्लाम के करीब आएंगे। जब तक हम अपने इस्लाम की सच्चाइयाँ उसकी खूबियाँ नहीं बयान करेंगे, तब तक ये इस्लाम से करीब नहीं आएंगे। इस्लाम नहीं जानते, जानेंगे तो करीब आएंगे। आज मिसाल के तौर पर लोगों को नमाज़ों से खतरा है, लोगों को अज़ान से खतरा है, लोगों की मेरी माँ बहनों के हिजाब से खतरा है, तलाक के निज़ाम से खतरा है। ये सारे मसाइल क्यों पैदा हुए? इसलिए कि हमने सही मानों में इस्लाम का तारुफ नहीं कराया, इस्लामी अहकाम का तारुफ नहीं कराया। चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है, कातिल को कत्ल कर दिया जाता है इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक, जिनाकार को कोड़े लगाए जाते हैं, शादीशुदा हो तो रजम कर दिया जाता है, शराब पीने वाले को 40 कोड़े लगाए जाते हैं, तोहमत कराने वाले को 80 कोड़े लगाए जाते हैं वगैरह। ये सारी तालीमात हैं, इसको दहशतगर्दी का नाम देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते इस्लामी तालीमात की हिकमतें क्या हैं। चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म जो है उसके अंदर फायदे क्या हैं, मनफातें क्या हैं, मसलहतें क्या हैं, उसका नतीजा समाज पर क्या आएगा। 3 तलाक का जो शरीयत का निजाम है सुन्नत का, उसके फायदे क्या हैं, निजात की बरकतें क्या हैं, तलाक और ऐसे ही जो निजाम है पूरा इस्लाम का, इसका पैगाम हम खोल करके दुनिया के सामने नहीं बयान कर पाते। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने रवैये से, अपनी चाल चलन से, अपने मुआमलात से हम इस्लाम को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो इस्लाम से नावाकिफ है, इसीलिए इस्लाम के खिलाफ को बेगंदा करते हैं और इस्लाम को खूबियाँ यानी इस्लाम से डराने का काम करते हैं, डरते हैं, डराते हैं, वहशत पैदा करते हैं, चौगुना करते हैं। इस्लाम बहुत खतरनाक है, खबरदार इसके करीब नहीं जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों का मेहतराम और बहनों, बहुत सारी बातें थी, मैंने बहुत जल्दी में मुझे यूं ही बेरब बेहमकम चंद बातें आज कर दी हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला किसी मौके पर तफसील से मौजूद पर गुफ्तगू करने का मौका मिले, गुफ्तगू की जाएगी। ये टूटी फूटी बातें, ये इनकम्प्लीट बातें ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसकी जो बातें शेयर की हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें ये पैगाम दुनिया के सामने फैलाने की, आम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि इस्लाम के सिलसिले में लोगों के नज़रियात, लोगों के अफ़कार सुथरे हो जाए, इस्लाम से नफरत करने के बजाय मोहब्बत करना शुरू कर दे, उससे दूरी अख्तियार करने के बजाय करीब आने का फैसला करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें वाक़ई इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ अपनी गुफ्तगू का खात्मा करता हूँ। वआखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।